सभी को नमस्कार। जब मैं अंदर आ रहा था, हर पल मेरा एनर्जी लेवल ऊंचा जा रहा था। यह सब आपकी बदौलत है। इतना उत्साह देखकर मैं भी थोड़ा उत्साही हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जेंडर बैलेंसिंग है। यह कहना मुश्किल है कौन सा पलड़ा भारी है। मुझे लगता है यह पलड़ा भारी है। पर जब गहराई से सोचता हूं तो यह पलड़ा भी कम नहीं है। आवाज मत करो, इधर से आवाज ज्यादा आएगी। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट उत्तर कर्नाटक श्री मंकल एस वैद्य जी, श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ फॉर्मर स्पीकर। वो इसलिए कहता हूं कि जो एक बार विधानसभा का अध्यक्ष रह लेता है, वो राज्यसभा में सभापति के रूप में जो मेरी पीड़ा है, जो मुश्किल है, उसको समझते हैं। ये मेरे हमदर्द हैं। ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। श्री भीमन्ना टी नायक एमएलए, सिरसी सिद्धापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोनों जगह जा रहा हूं आज। विधायक महोदय ठीक है ना? सिरसी भी और सिद्धापुरा। डॉक्टर पीएल पाटिल, वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़। बॉयज एंड गर्ल्स, this is my second visit to the University of Agriculture Sciences, Dharwad, but my first one to this college. So I have had 2 encounters with your Vice Chancellor, a man of commitment and passion. Sri Sunil Kumar Gupta, Secretary Vice President of India, and one of the senior most bureaucrats in the country. Shri Vasanta Reddy, Chief Conservator, member of Indian Forest Service, and if I am not mistaken, an alumnus of this institute. जब मैं सिरसी को देखता हूं, in the lap of majestic Western Ghats, one of the richest biodiversity region, not only in Bharat, but in the entire world. जब ऐसा वातावरण हो तो क्लासरूम्स के दीवार नहीं होती है, दीवार के बाहर भी आप देख सकते हो। Because this is one classroom here which is open, breathing and brimming with life. College of Forestry, fortunately and uniquely, is surrounded by nature, and nature in its most pristine form. यहाँ का नजारा ही कुछ और है। वातावरण हर्ष और उल्लासित कर देता है। The air here, सिरसी की जो हवा है, उस हवा के अंदर क्या क्या सुगंध आती है। Cardamom, pepper, bitter leaves and vanilla. These spices have defined our culinary identity for centuries
and have accounted for our economic prosperity also for centuries. सबसे पहला जब व्यापार शुरू हुआ वो इन्हीं से हुआ था. यह एक ऐसा इलाका है जहां वातावरण अपने आप बोलता है. वातावरण के संपर्क में आते ही आप अजीब सुगंध महसूस करते हो. We must listen to whispering winds emanating from towering trees, and we have chirping birds which are not defined so far. The gurgling of forest streams. और क्या क्या बताया जाए. मन करता है यहीं पर बस जाऊं, पर आपको तो सौभाग्य मिला है यहां शिक्षा प्राप्त करने का. These boys and girls is a rare occasion for you. Make the most of it, because from here you will be ambassadors, torch bearers to protect environment, to see goodness in forest, to believe in essentiality of environment. But this land has another important aspect. This land is confluence of spirituality and sustainability. Sustainability is vital for economy, but also vital for healthy life. Sustainability has been preached in our Vedic culture for thousands of years. पर आज के दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. We cannot engage in reckless exploitation of natural resources. हमें उतना ही करना पड़ेगा जो हमारी मिनिमम आवश्यकता है. हम सबको इस बात का बोध होना चाहिए. We must have self-realization कि जो धरती माँ है, जिसको माँ कहते हैं, जो एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम है, फ्लोरा है, फौना है, हम इसके ट्रस्टीज हैं, हम इसके कंज्यूमर्स नहीं हैं. We have to pass on this to our future generations. और ये धरती माँ को जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेरे लिए always it has been nectar, honey, energy when I interact with young minds, boys and girls. And why I say so? Young boys and girls are vital stakeholders in democracy. विकसित भारत की यात्रा के सबसे सबल, सबसे महत्वपूर्ण सारथी आप लोग. I therefore am always delighted to share my thoughts with you. And thoughts I am sharing on a very important aspect at Sirsi, a place of academic excellence that serves our environment. और एनवायरमेंट वो एस्पेक्ट है लाइफ का जो धरती पर हर प्राणी को छूता है. एनवायरमेंट पर को जब चुनौती दी जाती है तो वो चुनौती सिर्फ मानव जाति को नहीं है, इस पृथ्वी पर जो भी है उसके लिए. आज के दिन बहुत बड़ी कसौटी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, बचाव करें. जो भारी संकट आ रहा है उसको हम कैसे पार करें. दिस चैलेंज इज अ कसौटी जिस पर हम सबको खरा उतरना है. इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, यू हैव चोजन द राइट पाथ, यू हैव चोजन राइट academic pursuit, and you will be jumping into the larger domain
fully equipped to serve humanity, क्योंकि आपको यहाँ सिखाया जाएगा, सिखाया जा रहा है, भारत माँ का पूजन करना होता है, सृष्टि का सर्जन करना होता है, संरक्षण रखना होता है। हमने बहुत घातक काम किए, अब तक कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सही कहा गया था, when we look at our planet, there is everything for everyone's need, but certainly not for greed. इसलिए यहां मैं ये कहता हूं कि धरती मां ने जो हमको दिया है, we must resolve to use those resources frugally, optimally, and minimally, only to satisfy our basic requirements. Forests बहुत महत्वपूर्ण है। Forests are our lungs. किसी भी देश में forest ठीक रहेगा, the people will enjoy good health because forests are lungs. उसी तरीके से मैं कहता आया हूं बार बार, agriculture is our lifeline. पर फॉरेस्ट की आवश्यकता क्यों है? They regulate climate. They buffet disasters. Forests support livelihoods, especially for the poor and marginalized. We must pledge to protect forests, and we must contribute in every manner we can, because climate change is a global challenge, is a global menace. Situation is alarmingly cliffhanging, और धरती माँ के अलावा हमारे पास रहने की और कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में let us face this existential challenge in togetherness. और इसके लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, the planet is not exclusive to human race. The planet belongs to all living beings. We must recognize this writing on the wall. जब मुझे जानकारी मिली कि इस संस्था के एल्यूमिनी सरकारी सेवा में और अन्यत्र भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, I appeal to them to converge into a very powerful alumni association. They must connect with their alma mater, and this will go a long way, not only in nurturing this great institution, but also in evolution of policies. Alumni reservoir of human resource has talent, can rightly advise those engaged in policy making. जो मेरे सामने हैं, boys and girls, you are future foot soldiers of Bharat Ma. You will be protectors of our forests and environment. You have a bright future ahead of you, because in last 10 years, if any country has progressed exponentially, जिसकी अर्थव्यवस्था, संस्थागत ढांचा, तकनीकी रीच दुनिया को आश्चर्यचकित किया है, वो देश भारत है। इसलिए आज के दिन दुनिया में सबकी नजर भारत पर है, और भारत पर नजर इसलिए है कि भारत में जो यूथ पावर है,
डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज एनवी ऑफ द वर्ल्ड। और आपको आज के दिन ऐसे अवसर मिल रहे हैं जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। देयर आर affirmative policies of the government that handhold our youth and young minds to fully realize their potential and talent, achieve their ambition and dreams. ऐसे वातावरण में हमें राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो जाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में लिप्त हो जाना चाहिए। Time for us to contribute maximum and give back to the society. मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपको इस बात की आज के दिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। When you step out of this institute, आप क्या करोगे? You will have multiple options. ऐसा कभी पहले नहीं था जो आज हो रहा है। Our young minds, for them the opportunity basket लगातार बढ़ता जा रहा है। You have to be cognizant of that. बहुत अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे, और मैं आपसे एक बात कहूंगा, बी इंक्विजिटिव, ललक होनी चाहिए नई बात की जानकारी के लिए। और जो एकेडमिक परस्यूट आपका है उसमें तो इतनी संभावनाएं हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत में झांक कर देखेंगे, आपको एक खजाना मिलेगा, और जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी सेवा आप सृष्टि की कर पाएंगे। जो विषय आपका है आज के दिन, उसी से उपचार निकलता है, उसी से उत्पादन निकलते हैं। You can really be effective crucible of research with respect to forest produce, और उसके कितने अच्छे आयाम हो सकते हैं। आज के दिन कोई भी संस्था अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं हो सकती। एक जमाना था मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, फॉरेस्ट एजुकेशन, वो स्टैंड अलोन थे। आजकल इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू हैव इंक्लूसिव अप्रोच टू लर्निंग। आई एम श्योर द वाइस चांसलर एंड द डीन विल बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट। पर एक बात सदैव याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नेचर के साथ जो हार्मनी है और जो इतिहास में दर्ज है और आज हमारी आंखों के सामने है, वो भारत में बेमिसाल है। हार्मनी विद नेचर हैज बीन आवर वे ऑफ लाइफ, and that is what we have to nurture. Our ancient scriptures, our philosophies, from Vedas to Upanishads, they have always placed very great emphasis on environmental balance. एक छोटा मोटा टकराव नजर आएगा, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंटल ग्रोथ and environment conservation. But that has to be a neat balance struck after taking note comprehensively of all aspects. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस गति से भारत जा रहा है, ऐसी गति है जो दुनिया के लिए बेमिसाल है। उसमें फॉरेस्ट के मामले में भी भारत सरकार ने बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 दर्शाती है कि हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज
25.17% of the total geographical area of this country. As compared to 2021, there is rise of 1%. But our target is, we have to get closer to 33% forest coverage. We must vigilantly proceed in that direction. It must be people's movement. हमारा जो फॉरेस्ट कवर गांव में है, उसका डिप्लीशन हो रहा है. Plantation should not be mistaken with forest. Afforestation and plantation are two different things. Our forest cover must increase. और इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है जो प्लांटेशन से संबंधित है. एक पेड़ मां के नाम. आज मैंने इस पावन स्थल से मेरी मां के नाम एक पेड़ लगाते हुए सभी को एक आह्वान किया है, कम से कम एक पेड़ मां के नाम, बाकी उसको बढ़ाते रहिए. फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे जरूरी जो है जीवन के लिए वो है हवा. पुरानी संस्कृति में जाएंगे तो पूछते थे हवा पानी कैसा है, मतलब हवा अच्छी है क्या, जल निर्मल है क्या. इन सब का आपकी शिक्षा से संबंधित है. I therefore congratulate you for having chosen a line, academic pursuit that is fundamental to survival of humanity and lifeline of humanity. अंत में एक बात कहूंगा, वाइस चांसलर साहब, बच्चे और बच्चियों का दल बनाइए. They will visit Indian Parliament as my guest. I will interact with you. और ये शुरुआत में यहां नहीं कर रहा हूं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. मैं मानकर चलता हूं बहुत जल्दी आपके एक समूह का साक्षात्कार मेरे से दिल्ली में होगा. आवाज ही नहीं आ रही है, कहां होगा? गुड, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.